friends, welcome to Divika's Biology. Today we discuss NCERT question answer chapter 13 photosynthesis in higher plants. First question is, by looking at a plant externally, can you differentiate whether it is C3 or a C4 plants? Why and how? क्या आप externally देख करके differentiate कर सकते हैं कि ये C3 plant है या C4 plant? So no one can distinguish by externally whether it is C3 or C4 because although wheat and maize they are grasses, but wheat is a C3 plant while maize is a C4 plant. Unlike C3 plants, the leaves of C4 plants have a special anatomy called the Kranz anatomy, and the difference can only be observed at the cellular level. So nobody can distinguish externally whether it is C3 or a C4 plant. Next question is, by looking at which internal structure of a plant can you tell whether a plant is C3 or C4? आप इंटरनल कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर बताएंगे कि ये C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? सो द लीव्स ऑफ C4 प्लांट हैव द Kranz anatomy while C3 plants doesn't have the leaves of C3 plant doesn't have the Kranz anatomy. सो हम लीव्स की एनाटॉमी को देख करके डिफरेंशिएट कर देंगे कि ये C4 प्लांट है या C3 प्लांट है. The leaves of C4 plants have a special anatomy called the Kranz anatomy. This makes them different from the C3 plants. Special cells known as bundle sheath cells surrounded the vascular bundles in Kranz anatomy. These cells have a large number of chloroplasts. They are thick-walled and have no intercellular spaces. हमने बोला कि Kranz एनाटॉमी को देख करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लीव्स की एनाटॉमी की Kranz एनाटॉमी को देख करके कि ये प्लांट C3 प्लांट है या C4 प्लांट है. तो अब हमने यहाँ पे Kranz एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया है. They have large number of chloroplasts. They are thick-walled and have no intercellular spaces. They are also impervious to gaseous exchanges. All these anatomy features help prevent photorespiration in C4 plants, thereby increasing their ability to photosynthesis. Photorespiration photosynthesis को कम कर देता है. C4 plants में photorespiration नहीं होता है, इसीलिए C4 plants में photosynthesis की ability ज़्यादा होती है. Question number 3. Even though a very few cells in a C4 plants carry out a photosynthetic product, can you discuss why? जब C4 प्लांट्स होता है उसमें अगर कुछ फ्यू सेल्स भी हैं तो वो कैल्विन साइकिल कर देते हैं. तो हमें ये डिस्कस करना है क्यों. फ्यू सेल्स कैल्विन पाथवे को कंप्लीट भी कर देते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है. द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्लांट इज मेजर्ड बाय द रेट एट विच इट्स फोटोसिंथेसाइज. कितना प्रोडक्ट बना है वो हम ऐसे कंफर्म करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का रेट कितना है. अगर हम फोटोसिंथेसिस का रेट को मेजर कर लेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी हम किसी प्लांट की मेजर कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. यानी जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा. C4 plants have mechanism to increase the concentration of carbon dioxide. C4 plants के पास मैकेनिज्म है जो CO2 के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को. C4 plants the Calvin cycle occurs in the bundle sheath cell. जब हमने C4 प्लांट में हैचेंस लाइक पाथवे देखा था और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो मीजोफिल सेल में बना था वो चला जाता है बंडल शीथ सेल में. बंडल शीथ सेल में जाने के बाद ऑक्सैलो एसिटिक बना देता है दूसरे 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड. दिस C4 कार्बन कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू CO2 and 3 कार्बन कंपाउंड. देन दिस CO2 यूज्ड इन द कैल्विन साइकिल. तो हमने देखा कैल्विन साइकिल कहाँ पे हुई? बंडल शीथ सेल में. इन C4 plants, Calvin cycle occurs in the bundle sheath cell. C4 compound in malic cell form the mesophyll cell is broken down in the bundle sheath cell.
एज अ रिजल्ट जो बना था मैलिक एसिड वो बंडल शीट में जाकर के क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। और मैलिक एसिड किसने बनाया था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने। एज अ रिजल्ट CO2 इज रिलीज, CO2 रिलीज होती है। द इंक्रीज इन CO2 ensures that the enzyme Ribusco does not act as oxygenase but as a carboxylase। जब बंडल शीट सेल में CO2 रिलीज हो जाता है तो CO2 इंक्रीज हो जाती है। जब CO2 बढ़ जाती है तो वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो रिब्यूस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट ना करे बल्कि वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करे, तभी तो CO2 का यूज होगा कार्बोक्सिलेशन स्टेप में। रिब्यूस्को से जब CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है तभी फॉर्म होता है PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA कैल्विन साइकिल में। दिस प्रिवेंट्स फोटो रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब CO2 ज्यादा हो जाता है और वो रिब्यूस्को को कहता है कि वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करे तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाता है। thus the C4 plants are highly productive। Question number 4, Ribusco is an enzyme that act both as a carboxylase and oxygenase। रिब्यूस्को एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम कर रहा है। व्हाई डू यू थिंक रिब्यूस्को कैरीज आउट मोर कार्बोक्सिलेशन इन C4 plants? The enzyme Ribusco is absent from the mesophyll cell of C4 plants। रिब्यूस्को एंजाइम C4 plants के mesophyll cell में absent होता है। It is present in the bundle sheath cell surrounding the vascular bundles। In C4 plants, the Calvin cycle occurs in the bundle sheath cell. The primary CO2 acceptor in the mesophyll cell is phosphoenol pyruvate, which is a 3-carbon compound. It is converted into the 4-carbon compound oxaloacetic acid. Further, it is converted into the malic acid and transported into the bundle sheath cell, where it undergoes decarboxylation. CO2 fixation occurs by the Calvin cycle. This prevents the enzyme Ribusco from acting as an oxygenase। Question number 5th, suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A, would it carry out photosynthesis? Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigments? एक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल बी बहुत सारे हैं बट क्लोरोफिल ए नहीं है, क्या आपको लगता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगा? और क्यों प्लांट्स के पास क्लोरोफिल बी है होते हैं और बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्ट एज अ एंटीना मॉलिक्यूल। दे गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एंड emit electron during the cyclic and non-cyclic photophosphorilation। They form the reaction center for both photosystem A1 and 2। क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर दोनों ही सिस्टम में, फोटोसिस्टम ए में भी फोटोसिस्टम बी में भी। क्लोरोफिल बी and other photosynthetic pigments such as carotenoids, xanthophylls act as our accessory pigments। Their role is to absorb the energy and transfer to the chlorophyll A। क्लोरोफिल ए मेन रिएक्शन सेंटर है, बाकी क्लोरोफिल बी और एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए मौजूद होते हैं ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बी ए को दे सके। कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफाइल आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। देयरफॉर क्लोरोफिल ए इज essential फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ एनी प्लांट वर लैक क्लोरोफिल ए and contain a high concentration of chlorophyll B, then this plant would not undergo photosynthesis। यानी अगर किसी प्लांट में बहुत सारे क्लोरोफिल बी हैं और क्लोरोफिल ए नहीं है तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगा, क्योंकि ए क्या है? मेन रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का। Why is the color of a leaf kept in a dark, frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable? जब हम किसी लीफ को डार्क में रख लेते हैं देन वो येलो हो जाता है या पेल ग्रीन हो जाता है। आप विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? कौन सा पिगमेंट ज्यादा स्टेबल है? सिंस लीव्स रिक्वायर लाइट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। लीव्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट,
The color of the leaf kept in a dark changes from the darker to a lighter shade of green. Sometimes it also turns yellow. जब हम लीफ को डार्क में रखते हैं, लाइट की एब्सेंस के कारण वो ग्रीन चेंज हो जाता है येलो में. The production of chlorophyll pigment essential for photosynthesis is directly proportional to the amount of light available. In the absence of light, जब लाइट नहीं है, the production of chlorophyll A molecule stops and they get broken slowly. तो क्लोरोफिल का ए मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और वो ब्रोकन डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस चेंजेस द कलर ऑफ द लीफ ग्रेजुअली टू लाइट ग्रीन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट बिकम प्रीडोमिनेंट. इस केस में ये दोनों पिगमेंट्स प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं, विच कॉजिंग द लीफ टू बिकम येलो. These pigments are more stable as light is not essential for their production. यानी जब बिकम येलो हो गया है लीफ, तो उस केस में ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट्स. Question number 7. Look at leaves of the same plant on the shady side and compare it with the leaves on the sunny side. एक प्लांट लेना है, सेम प्लांट के दोनों साइड, जहां धूप हो रही है या जहां छाए हैं, उन दोनों की लीव्स को हमें कंपेयर करना है. और कंपेयर द प्लॉटेड प्लांट्स केप्ट इन द सनलाइट विद दोज इन शेड. या हम दो अलग प्लांट्स को देख लें और उनको कंपेयर करें, जो एक धूप में है और दूसरा जो छाए में है. विच ऑफ देम, कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना है विच लीव्स आर डार्कर इन ग्रीन कलर. So light is a limiting factor for the photosynthesis. Light photosynthesis के लिए limiting factor है. ज़्यादा light, ज़्यादा photosynthesis. It means जो leaves, जो plants छाए में होंगे, उनके अंदर photosynthesis कम होगा as compared to जो leaves और plants sunlight में होंगे. In order to increase, so जो plants और जो leaves छाए में हैं, वो अपना photosynthesis को increase करने के लिए they have the more chlorophyll pigment. जब chlorophyll pigment ज़्यादा होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा. सो जो प्लांट्स और जो लीव्स छाए में हैं, दे आर ग्रीनर और दे आर डार्क ग्रीन इन कलर एज कंपेयर टू द लीव्स और द प्लांट्स विच आर केप्ट इन अ सन. क्वेश्चन नंबर 8. फिगर आउट 13.10. फिगर है 13.10 शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फिगर हमें ये बता रहा है इफेक्ट ऑफ लाइट किस पर, फोटोसिंथेसिस पर. बेस्ड ऑन द ग्राफ को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. दिस इज द ग्राफ और द फिगर 13.10. लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट इंटेंसिटी एट डी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम. आफ्टर दैट क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम में चला गया, कांस्टेंट हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ए पे क्या है, जब लाइट इंटेंसिटी कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम है. जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ भी अप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. इस ग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके हमें आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन ए, एट विच पॉइंट एबीसी में से किस पॉइंट पर कर्व इज लाइट अ लिमिटिंग फैक्टर. लाइट लिमिटिंग फैक्टर है. इन द गिवन ग्राफ लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर एट द पॉइंट वेयर द फोटोसिंथेसिस इज द मिनिमम. लिमिटिंग फैक्टर लाइट का वहां पर है जहां पे फोटोसिंथेसिस एकदम मिनिमम हो रही है. द लीस्ट वैल्यू फॉर द फोटोसिंथेसिस इज इन रीजन ए. सो ए रीजन पे सबसे कम फोटोसिंथेसिस हो रही है, हेंस ए इज द रीजन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर. क्वेश्चन बी, व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए. रीजन ए में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इट कुड बी अ वाटर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ए रीजन पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर, टेम्परेचर और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू C एंड D रिप्रेजेंट ऑन द कर्व. कर्व में C और D क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पॉइंट D रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमम पॉइंट and gives the light intensity at which the maximum photosynthesis is recorded. D एक ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पर हमने सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को रिकॉर्ड किया है.
सी रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट है इवन दो द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस। यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है बट सी रीजन पे क्या है, फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिव कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग C3 एंड C4 पाथवे। C3 pathways and C4 pathway. The primary acceptor of CO2 is RUBP at a 5-carbon compound. Ribulose bisphosphate is the primary acceptor of CO2, which is a 5-carbon compound. In C4 pathway, the primary acceptor of CO2 is a phosphoenol pyruvate, which is a 3-carbon compound. The first stable product is 3-phosphoglycerate. In case of C4 pathway, the first stable product is oxaloacetic acid. In C3, it occurs only in the mesophyll cells of the leaves, but C4 pathway occurs in the mesophyll and the bundle sheath of the cell of the leaves. C3 pathway, it is a slower process of carbon fixation and photorespiratory losses are high. It is a faster process of carbon fixation and photorespiratory losses are low. C3 में क्या है, कार्बन फिक्सेशन स्लो हो रहा है, C4 में कार्बन फिक्सेशन फास्ट है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, C4 में फोटो रेस्पिरेटरी लॉस बहुत लो हो रहा है। Comparison between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. In cyclic, only photosystem 1 involved. In non-cyclic, photosystem 1 and 2 both involved. It involves only the synthesis of ATP. It involves the synthesis of ATP and NADPH2. Cyclic phosphorylation, in this process, photolysis of water doesn't occur, but in case of non-cyclic, photolysis of water takes place and oxygen is liberated. There is no oxygen produced. In this process, electrons move in a closed circle, where in non-cyclic pathway, electrons do not move in a closed circle. Anatomy of leaves in C3 plant and C4 plants. अब हमें कंपैरिजन बताना है C3 plant और C4 plants के leaves के बीच में. Bundle sheath cells are absent in case of C3 plants, while it is present in C4. Rubusco is present in the mesophyll cell and Rubusco is present in the bundle sheath cell. The first stable compound in C3 is 3-phosphoglycerate, which is a 3-carbon compound, while in case of C4, first stable product is oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. Photorespiration occurs in the leaves of C3 plants, while photorespiration doesn't occur in the leaves of the C4 plant. So this exercise is completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like, subscribe and share. Thank you for watching.